الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے آج کے اس درس میں ہم جانیں گے اعراب کے لحاظ سے اسم کے اقسام کیا ہے۔ یہ اصل میں پچھلے لیکچر کا یعنی لیکچر نمبر 5 کا آج کنٹینیول ہے۔ اس کو ہم لیکچر نمبر 6 کہیں گے، اور اس میں ہم اس لیکچر کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ اعراب کے لحاظ سے اسم کے جو اقسام ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا اور جانا، اور اس لیکچر میں اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ اعراب کا جو موضوع ہے وہ ہمارے پورے ذہنشین ہو جائے۔ ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ اسم کو جاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جنس، یعنی اس کا جنڈر کیا ہے۔ اس کے بعد عدد، اسم جو ہے یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے یعنی ڈیول ہے، یا یہ جمع ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا اسم کے بارے میں کہ اسم جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، جس کو ہم نے وسعت کہا تھا۔ اسم کے بارے میں وسعت کا علم۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اعراب، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اعراب کا جو جاننا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، عربی کا خاصہ ہے۔ اور اگر آپ عربی زبان میں مہارت چاہتے ہیں، عربی زبان کو جاننا چاہتے ہیں، تو اعراب کے بارے میں آپ کا جو نالج ہے یا کنسپٹ ہے وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ جانا کہ اعراب کا مطلب یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ مختلف شکلیں چینج کرتا ہے، اس کی ڈفرینٹ شکلیں آتی ہیں، اور اگرچہ شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، اس کے باوجود اسم کا جو معنی ہے اس معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اور اس کے بارے میں پچھلا لیکچر آپ دیکھیے گا تو آپ کو اور مزید باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم جانیں گے اعرابی شکلوں کے لحاظ سے اسم کی جو قسمیں ہیں وہ کیا کیا ہے۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ اعرابی شکلوں کی وجہ سے اسم کے الگ الگ شکلیں آ جاتی ہے، مگر آج ہم یہ جانیں گے کہ ان شکلوں کو یا جو اسم مختلف شکلیں تبدیل کرتا ہے عربی گرامر میں ان کو کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، اعرابی شکل میں تبدیلی کے لحاظ سے اسم کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبنی اسم، یعنی اعرابی حساب سے یا تو اسم مبنی ہوگا یا معرب ہوگا۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اسم کو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں پاتے ہوئے پائیں گے، یعنی ہم نے یہ جانا کہ اسم کی جو 3 مختلف شکلیں ہیں اعرابی حالت میں، سب سے پہلے ہے رفع، دوسرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نصب، اور تیسری اعرابی حالت ہے جس کو ہم کہتے ہیں جر۔ یعنی اسم یا تو منصوب ہوگا، مرفوع ہوگا یعنی رفعی حالت میں ہوگا، یا منصوب ہوگا نصبی حالت میں ہوگا، یا مجرور ہوگا جری حالت میں ہوگا۔ یعنی 3 حالتیں اسم کی ہوتی ہیں۔ مگر اگر آپ نے کبھی اسم کو دیکھا اس کی شکل ایک جیسی لگ رہی ہے، یعنی رفع میں بھی وہی شکل ہے، نصب میں بھی وہی شکل ہے، اور جر میں بھی وہی شکل ہے، شکل تو ایک ہی ہوگی، مگر وہ رفع کبھی ہوگا، کبھی نصب ہوگا، کبھی جر ہوگا، ایسی حالت کو ہم کہتے ہیں، اس وقت جو اسم کی جو شکل ہے اعرابی شکل ہے اس کو کہتے ہیں مبنی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک اسم ہے موسیٰ، ایک پیغمبر کا نام علیہ السلام، اور ویسے بھی نام رکھتے ہیں موسیٰ۔ یہ جو موسیٰ ہے اسم، آپ دیکھیں گے اگر موسیٰ، کبھی آپ دیکھیں گے لفظ موسیٰ جو لکھا ہوا ہے یہ کبھی رفعی حالت میں ہے، کبھی نصبی حالت میں ہے،
कभी जरी हालत में है, अलग अलग हालात में होगा ये, मगर इसकी जो शक्ल होगी वो मूसा ही रहेगा, कोई फर्क शक्ल के हिसाब में नहीं आ सकता। हालांकि कभी ये रफा में होगा, कभी नस्ब में होगा, कभी जर में होगा, मगर तीनों हालतों में उसकी शक्ल एक ही होगी। इसी तरह ईसा है, इसी तरह कुबरा है। तो ऐसे अस्मा जो अगरचे तीन अलग अलग हालतों में होते हैं, क्योंकि हमने जाना कोई भी इसम तीन हालतों में हो सकता है, या रफा आ सकता है, या नस्ब में आ सकता है, या जर में आ सकता है। अगर तीनों हालतों में उसकी शक्ल एक ही आपको लगे, आप देखने में लगे कि वो एक ही शक्ल में है, उस वक्त आप कहेंगे कि ये इसम जो है ये मबनी है, मबनी इसम है। यानी ये अरबी शक्ल के लिहाज से उसकी एक ही शक्ल है, चाहे वो नस्ब में है, चाहे वो रफा में है, या चाहे वो जर में है। मिसाल यहाँ पर मूसा, ईसा, कुबरा। इसके बरक्स हम देखेंगे कुछ ऐसे अस्मा भी है, ऐसे इसम है, ऐसे अस्मा है जो अलग अलग हालतों में, यानी रफा में, नस्ब में या जर में अपनी हालतें तब्दील करते, एक ही हालत में नहीं रहते, जैसा कि आपने ऊपर देखा। ऐसे इसम को अरबी शक्ल के लिहाज से मुअर्रब कहते हैं। मुअर्रब यानी ऐसा इसम जो अपनी हालत को अलग अलग हालतों में आता है, रफा में अलग आता है, नस्ब में अलग आता है, और जर में उसकी शक्ल अलग होती है। फिर हम जब मुअर्रब अस्मा पढ़ते हैं, इसकी भी दो किस्में पढ़ते हैं। एक होता है मुनसरिफ मुअर्रब, और दूसरा होता है गैर मुनसरिफ मुअर्रब। ठीक है, तो पहले हमने ये जाना कि इसम अगर आपको लगे तीन हालतों में, रफा नस्ब जर, तीनों हालतों में उसकी शक्ल एक जैसी है, उस इसम को हम मबनी इसम कहेंगे। और अगर इसम वो आप अलग अलग हालतों में, रफा में अलग शक्ल, नस्ब में अलग शक्ल, जर में अलग शक्ल, ऐसी सूरतों में उसको मुअर्रब इसम कहते हैं। मुअर्रब की फिर मैंने दो किस्में आपको बताई, मुनसरिफ मुअर्रब और गैर मुनसरिफ मुअर्रब। अब ये क्या होता है, इसके बारे में हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे, फिर आप इनको अच्छी तरह से ज़हनशीन करेंगे। सबसे पहले हम मबनी अस्मा की मिसालें देखेंगे। यानी मबनी अस्मा ऐसे अस्मा जो तीन हालतों में, एराब की तीन हालतों में एक ही शक्ल में होते हैं। जैसे हमने बताया कि एराबी हालत में या तो रफा होगा, या तो नस्ब होगा, या फिर जर होगा। मैंने अलग अलग लेटर, अलग अलग कलर से इसको आपके सामने बयान किया है। इस स्लाइड में आप देखेंगे रफा को मैंने रेड कलर से, और इसका एरो आप देखिए ऊपर की तरफ बनाया है। नस्ब को ग्रीन कलर में एराब डिनोट किया है, और इसकी जो यानी इंडिकेशन है वो मैंने ग्रीन कलर एरो डाउन की तरह बनाया है। और जर को मैंने पर्पल कलर में बनाया है, उसकी आप देखिए एरो का शक्ल लेफ्ट साइड में एरो बनाया है। तो इससे आप देखेंगे अगले लेक्चर्स में यही कलर हम फॉलो करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इसम एराबी हालत में रफा में है, नस्ब में है, या जर में। बात करेंगे मबनी अस्मा की। आपने देखा मबनी अस्मा ऐसे अस्मा है जो रफा नस्ब जर में होंगे, मगर उनकी शक्ल एक जैसी लगी। जैसे मूसा, रफा में भी मूसा होगा, नस्ब में भी मूसा है, और जर में भी मूसा है। इसी तरह ईसा, रफा में भी ईसा ही होगा शक्ल में, नस्ब में भी ईसा ही होगा, और जर में भी आप देख रहे हैं ईसा ही लिखा हुआ है। रफा में यहया, नस्ब में भी यहया उसी तरह लिखा जाएगा, और जर में भी यहया उसी तरह आप देख रहे हैं। कुबरा रफा में, कुबरा नस्ब में, और कुबरा जर में कोई फर्क नहीं है इसम की शक्ल में। इसी तरह हुस्ना, 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 तीनों शक्लों में यानी अस्मा के अराब के हिसाब से तीनों जो किस्में हैं, रफा नस्ब जर, तीनों हालात में आप एक ही शक्ल में हुस्ना को भी देखेंगे। इसी तरह बुशरा, रफा में भी वैसे ही, बुशरा नस्ब में भी वैसे, और जर में भी वैसे बुशरा। तो ऐसे अस्मा जो तीन हालतों में होते हैं, मगर अगर आप उनकी शक्ल देखेंगे वो एक जैसे होगी रफा नस्ब जर में, ऐसे अस्मा को हम मबनी अस्मा कहते हैं। यानी इनकी शक्लें तब्दील नहीं होती। याद रखना चाहिए मबनी अस्मा बहुत कम है, लेस देन 2%। पूरे अरबी ग्रामर में अगर आप मबनी अस्मा देखेंगे तो वो बहुत कम है, तादाद में मबनी अस्मा
यानी आप उंगलियों पे उनको गिन सकते हैं। कुछ ही अस्मा है जिनको हम मबनी अस्मा कहेंगे। उसके बाद हमने बताया, उसके बाद मुअर्रब है अस्मा। मुअर्रब में सबसे पहले है मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा ऐसे अस्मा है जो इसम की ऐसी कंडीशन है, ऐसी यानी ऐसे हालत है जो तीनों आराबी हालतों में अपनी शक्ल तब्दील करते हैं। और तकरीबन ये अस्मा कुरान मजीद में या अरबी ग्रामर में 85% है। यानी 85% अरबी ग्रामर में जो भी अस्मा आप पाएंगे 85% वो मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा है। यानी ऐसा इसम जो तीन अरबी हालत में अपनी तीन शक्लें बना देता है। ओके, और याद रखना चाहिए तनवीन वाले तमाम इसम जो है वो मुनसरिफ होते हैं सिवाय जमा सालिम मुअन्नस के। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। आप देखेंगे जब भी आप इसम को आप तनवीन में देखेंगे, ये एक इंडिकेशन है कि वो मुनसरिफ अस्मा है, यानी वो मुनसरिफ इसम है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया मुअर्रब की दो किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। अभी हम सिर्फ मुनसरिफ की बात कर रहे हैं। और इंडिकेशन आपके लिए ये है कि जब भी आप इसम को तनवीन की शक्ल में देखेंगे तो उस वक्त जानिएगा कि वो तकरीबन उस वक्त 99% जो इसम है वो मुनसरिफ होगा। और मुनसरिफ इसम किसको कहते हैं? जिसकी तीन आराबी हालत में तीन शक्लें होंगे। मिसाल के तौर पर रफा में एक इसम है किताबुन। किताबुन, ये रफा में हमारे पास एक इसम है। नस्ब में अगर इसी इसम को हम पढ़ेंगे तो बनेगा किताबन। ठीक है, किताबन। और जर में अगर इसी इसम को पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे किताबिन। ठीक है, आप देखिए किताबुन, किताबन, किताबिन। तो दो पेश जब होगा तो ये रफा में है, दो जबर है तो नस्ब में है, और किताबिन दो जेर में है तो जर में है। इसका मतलब कि इसम जब आप देखेंगे अलग अलग शक्लों में तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंट अरबी हालात में ये अलग अलग शक्लों में होता है। उस वक्त उस इसम को हम कहेंगे इसमें मुनसरिफ, या वो मुअर्रब का वो इसम है जिसको हम मुनसरिफ कहते हैं। इन्हें तीन अलग अलग अरबी हालात में वो तीन अलग अलग शक्लें बनाता है, वो तीन अलग अलग शक्लों में आता है। और याद रखने के लिए जितने भी तकरीबन तनवीन के अस्मा है वो तमाम तनवीन के अस्मा मुनसरिफ अस्मा ही कहलाते हैं। और ये भी मैंने बताया कि तकरीबन जो 85% अस्मा है कुरान मजीद में इसम इस्तेमाल हुए हैं अरबी ग्रामर में, 85% जो इसम है वो मुनसरिफ इसम ही है। एक और मिसाल है कलमुन। अगर रफा होगा तो कलमुन, नस्ब होगा तो कलमन, और जर होगा तो कलमिन। इसी तरह वलदुन, रफा में वलदुन, नस्ब में वलदन। याद रखिएगा जब भी दो जबर आता है उसके बाद अलिफ लगाया जाता है। यहाँ पे भी आपने देखा किताबन में अलिफ, कलमन में अलिफ, वलदन में एक अलिफ लगा हुआ है। ठीक है, और जब जर देखेंगे आप तो लिखा होगा वलदिन। इसी तरह बिनतुन रफा है, बिन तन नस्ब है, और बिन तिन जर है। इन्हें तीनों इसम आप देख रहे हैं अलग अलग शक्लों में है, माने में कोई तब्दीली नहीं है। बिन का मतलब रफा में नस्ब में जर में एक ही है। ठीक है, बेटी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मगर उसकी हालत में जब वो इस्तेमाल होगा किसी जुमले में उस वक्त वो क्या बन के आएगा, उस वक्त वो पूरा जुमला उसके मुताबिक चलेगा, उसके मुताबिक उस जुमले का तर्जुमा बनेगा। मगर बजाते खुद जो असल माने हैं बिनतुन का या वलदुन का या किताबुन का, चाहे वो रफा में है, नस्ब में है, जर में है, माने में बजाते खुद जो माने हैं उसमें कोई फर्क नहीं आता। क्योंकि एराब की तब्दीली से इसम के अपने माने में कोई फर्क नहीं आता। अलबत्ता जब जुमले में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो उस वक्त जुमले का एक अलग से एक मफहूम निकलता है, एक मानी निकलता है। इसी तरह रजुलन, रफा में रजुलन है, नस्ब में रजुलन, और जर में रजुलिन। बाइतुन, रफा में बाइतुन, नस्ब में बाइतन, और जर में बाइतिन। इन्हें दो पेश, दो जबर और दो जी। इसी तरह दारुन, रफा में दारुन, नस्ब में दारन, और जर में आप देख रहे हैं दारिन। इसी तरह अरबी में रफा में आप देखेंगे यदुन यानी हाथ,
अगर यही नस्ब में होगा तो यदन, आप देखिए दो ज़बर के बाद अलिफ लगा है, और जर की हालत में यदिन। आइनुन, रफ़ा की हालत में आइनुन, नस्ब की हालत में आइनन, और जर की हालत में आइनिन। मस्जिदुन, रफ़ा की हालत में मस्जिदन, नस्ब की हालत में अब देख रहे हैं दो ज़बर के बाद अलिफ आ रहा है। मस्जिदिन, ये जर की हालत में है। इसी तरह नफ्सुन, रफ़ा की हालत में, नफ्सन, ये नस्ब की हालत में, और नफ्सिन, ये जर की हालत। तो हमने देखा कि ये जो मुनसरिफ अस्मा है, ऐसे अस्मा जो तीनों अरबी हालात में अपनी शक्ल तब्दील करता है, और अरबी में तकरीबन ये 85% जो इसम हमारे पास है वो इसमें मुनसरिफ ही है। इसी तरह कुछ और मिसालें हैं। शाइउन, रफ़ा में शाइउन, नस्ब में शाइअन, और जर में शाइइन। सूउन, रफ़ा में सूउन, और नस्ब में सूअन, और जर में सूइन। जन्नतुन, रफ़ा हो गया, जन्नतन नस्ब में आएगा, और जन्नतिन जर में आएगा, ये इसम की यानी अराबी शक्ल। इसी तरह इमराअतुन, ये हो गया रफ़ा, इमराअतन ये हो गया नस्ब। अब ये देखिए, जब दो ज़बर आएगा गोल ता के ऊपर, इस वक्त अलिफ नहीं लगाया जाता, ये एक कायदा है अरबी का। तो दो ज़बर के बाद अलिफ तब आता है जब हमारे पास गोल ता, ये ताई मरबूता ना हो, यानी ऊपर आपने देखा मगर यहाँ पर आपने अलिफ नहीं देखा। जरी हालत में इमरातन बनेगा इमरातिन। इसी तरह मदीनतुन, ये रफ़ी हालत है, मदीनतन नस्बी हालत है, और मदीनतिन ये जरी हालत है। आयतुन रफ़ी हालत है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसम है ये मरफू है। मरफू मतलब ये रफ़ा की हालत में है। आयतन ये मंसूब है, यानी ये नस्ब में है। और आयतिन ये मजरूर इसम है। मजरूर का मतलब होता है ये जरी हालत। ठीक है, तो ये हमने जाना कि इसम जब मुनसरिफ होगा उस वक्त इसम जो है वो अलग अलग एराबी हालत में अलग अलग शक्लें बनाए। इसके बाद हमारे पास जो मुअर्रब इसम है उसका एक और जो मिसाल है वो है गैर मुनसरिफ इसम। गैर मुनसरिफ इसम ऐसी हालत है जब दो आराबी हालतों में इसम को देखें। ऊपर जो देखा हमने मुनसरिफ में, उसमें तीन अलग अलग हालात, रफा में अलग, नस्ब में अलग, और जर में अलग। गैर मुनसरिफ इसम तब होगा जब उसकी हालतें तो चेंज होंगी मगर सिर्फ दो ही हालत होगी, रफा में एक हालत और नस्ब और जर में एक ही हालत। रफा में एक हालत और नस्ब और जर में एक ही हालत, यानी वो भी हालत तब्दील करेगा। मगर गैर मुनसरिफ में इसकी सिर्फ दो शक्लें पाई जाती, रफा में आखिर में पेश होगा, और नस्ब में और जर में आप आखिर में जबर पाएंगे। जेर गैर मुनसरिफ अस्मा में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। जैसे आदमू, ये हो गया रफा, आदमा ये हो गया नस्ब, आदमा ये हो गया जर। और अक्सर जो इसमें अलम है यानी प्रॉपर नाउन जो अक्सर है, वो अक्सर प्रॉपर नाउन गैर मुनसरिफ अस्मा में ही आते हैं। प्रॉपर नाउन यानी किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, या किसी जगह का, खास जगह का नाम। प्रॉपर नाउन खास जगह, इसमें अलम, अरबी में उर्दू में इसमें अलम कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन में अगर आप कोई भी इसम देखेंगे अक्सर आप उनको गैर मुनसरिफ ही देखेंगे, यानी जिनके आखिर में दो जबर दो पेश या दो जेर यानी तनवीन नहीं होती। और मुनसरिफ अस्मा जो अक्सर होते हैं वो अक्सर तनवीन वाले अस्मा होते हैं जो तीन शक्लें तब्दील करते हैं, जबकि गैर मुनसरिफ अस्मा जो है वो सिर्फ दो ही शक्लें तब्दील करते हैं। रफ़ा में उनकी हालत तब्दील होती है और नस्ब और जर में एक जैसी होती है। रफ़ा में वो आखिर में पेश होगा, जबकि नस्ब और जर में आखिर में ज़बर होगा। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर नस्ब और जर में उनकी शक्लें एक जैसी है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस वक्त नस्ब में है या ये इस वक्त जर में है। बहुत अच्छा सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जवाब ये है कि वो जुमला आपको खुद बताएगा उस वक्त कि ये जो इसम आया है ये नस्ब में आया है या जर में आया है। यानी कोई ऐसी इंडिकेशन होगी, कोई ऐसी निशानी होगी, वो आपको खुद बताएगा कि ये जो इसम है अगर ये रफा नहीं है
तो नस्ब है या जर है, वो आपको उस वक्त के हालात बताएंगे। इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स के बाद आप खुद मुझे बताएंगे कि इस वक्त जो इसम है ये रफ़ा में है, रफ़ा तो खैर आपको पता होगा, ये नस्ब में है या जर में। और याद रखिएगा, इसम जो अपनी हालत में होता है, यानी इसम की जो अपनी हालत है, एक्चुअल हालत है, वो रफ़ी हालत है। इसम नस्ब और जर में एक ख़ास कंडीशन में जाता है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके जाता है। अदरवाइज इसम जो होता है, अक्सर आप देखेंगे जब हम नाम पढ़ते हैं, जैसे आदमू, हम लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर पेश लाते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे जन्नतुन, हम बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में 2 पेश लाते हैं, क्योंकि इसम की जो एक्चुअल हालत, असल हालत है, वो रफ़ी हालत है, वो मरफ़ू है। इसम नस्ब और जर में किसी ख़ास कंडीशन में किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में जाता है, वो हम पढ़ेंगे। इसम कब मंसूब बनता है, नस्ब में आता है, या कब मजरूर बनता है, जर की हालत में। तो हम पढ़ रहे थे गैर मुनसरिफ अस्मा, ऐसे अस्मा जो अपनी हालतें तब्दील करते हैं, बस उनकी 2 ही हालतें हैं। रफ़ा में उनकी हालत अलग है और नस्ब और जर में उनकी हालत एक जैसी है। रफ़ा में आखिर में उनके पेश होगा, जबकि नस्ब और जर में उनके आखिर में ज़बर होगा। यहाँ आपके सामने कुछ मिसालें हैं, और इसमें अलम अक्सर जो हमारे पास है वही गैर मुनसरिफ अस्मा है। आदमु, जब ये रफ़ा में होगा। आदमा, आदमा जब ये नस्ब और जर में होगा। इब्राहीमु, जब ये रफ़ा में होगा। इब्राहीमा, इब्राहीमा नस्ब और जर में सेम। इस्माईलु, जब ये रफ़ा में होगा। इस्माईला, इस्माईला जब ये जर में होगा। इसहाक़ु, जब ये रफ़ा में होगा। इसहाक़ा, इसहाक़ा जब ये नस्ब और जर में होगा। याकूबु, रफ़ा में होगा। याकूबा, याकूबा ये आप नस्ब में देख रहे हैं। इसराइलु, आप देखें कुरान मजीद में बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, इसराइलु भी इस्तेमाल हुआ है जब ये रफ़ा में। इसराइला, इसराइला जब ये नस्ब और जर में है। यूसुफु कुरान मजीद में बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है रफ़ा में। यूसुफा, यूसुफा नस्ब और जर में। तालूतु कुरान में इस्तेमाल हुआ है रफ़ा में। तालूता, तालूता ये अक्सर इस्तेमाल हुआ है नस्ब और जर में, दोनों हालतों में तालूता और तालूता ये आए। तो ये जो आप गैर मुनसरिफ अस्मा देख रहे हैं, तकरीबन इनकी तादाद 12% है, यानी 12% ऐसे अस्मा है। तो 18% प्लस 12% ये बन जाते हैं 98%। बाकी जो हमारे पास 2% रहते हैं वो मबनी अस्मा है, यानी ऐसे अस्मा जो रफ़ा नस्ब जर में अपनी शक्लें तब्दील नहीं करते। वो रफ़ा में होते हैं, नस्ब में भी होते हैं, जर में भी होते हैं। यहाँ पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रफ़ा में है, नस्ब में है, जर में है? मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन न हो जो इसम को नस्ब या जर में ले जाता हो, तो याद रखना चाहिए इसम उस वक़्त रफ़ा में ही होता है, क्योंकि इसम की एक्चुअल जो शेप है और सही सलामती वो इसी में है। तो मुझे लग रहा है कि आज हमारा जो एक्चुअल लेक्चर था वो यही जानना था कि ये एराबी हालत में इसम की क्या किस्में हैं। अगर आप साथियों में किसी को सवाल है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ टाइम है आज के लेक्चर के हवाले से, या इससे पहले जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उनके हवाले से। अदरवाइज हम आज का लेक्चर इसी पे एंड करते हैं। किसी साथी को अगर सवाल, तो अपनी माइक खोल के वो मुझे इसमें सवाल पूछ सकता है। चले फिर, अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप आज के लेक्चर को बड़े खूबी से बासानी समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काविश को कबूल फरमाए और हमारे लिए अरबी का सीखना समझना कुरान मजीद के लिए आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।